کے فوج کو بلایا، لیکن ہم سیاستدانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود لا اینڈ آرڈر سنبھالیں، ہم خود ملک کے مسائل حل کریں۔ ہمایوں صاحب مجھے پتا ہے یہاں آپ کی بات سے نا ایک بیان یاد آ گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فرمایا تھا ایک جگہ کہ I don't know, please correct me if I'm wrong، اگر میں معذرت کے ساتھ چیف جسٹس کو غلط نہ کہیں کوٹ کری ہوں، بٹ میں نے یہ بیان سنا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جی کراچی کے حالات وزیرستان سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ جی یہ کہا گیا تھا، چیف جسٹس نے یہ کہا تھا اس جب وقت انہوں نے وہ جب سو موٹو نوٹس جاسمین انہوں نے لیا تھا۔ اگر آپ کیجولٹیز دیکھیں تو پوری جو دنیا گھری ہوئی ہے وار آن ٹیرر سے، اور اتنے ممالک اس میں انوالوڈ ہیں اور سپر پاورز انوالوڈ ہیں، تو آئی تھنک چیف جسٹس صاحب نے بالکل، اگر آپ سٹیٹسٹکس ہی دیکھ لیں کیجولٹیز کے، اور کچھ ابھی آپ نے اپنے شو کے شروع میں جو سٹیٹسٹکس دہرائے، ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملات زیادہ گمبھیر ہیں باقی ملک کے جدھر وار آن ٹیرر ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ نے اپنے ایک کولیشن پارٹنر کی بھی گفتگو سنی اور ہمایوں اختر خان صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ اچھا، ANP کی کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلحے سے پاک کرانا ہے تو پاک کرانے کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، لیکن یہاں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اسلحہ اور مزید آ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں چانڈیو صاحب جو نہتے لوگوں کو، پولیٹیکل ورکرز کو، ان کو مار رہے ہیں، حالات خراب کر رہے ہیں شہر کے، اور لا اینڈ آرڈر کیوں پیپلز پارٹی نہیں سنبھال سکتی؟ آپ نے کہا تھا، آپ کی حکومت نے جب حلف اٹھایا تھا، آپ نے کہا تھا ہماری پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم کراچی کے حالات درست کریں گے۔ اتنے حالات تو کبھی کراچی کے خراب نہ تھے۔ میرا خیال ہے ہمایوں اختر صاحب نے، زاہد خان صاحب نے بہت مناسب باتیں کی ہیں۔ ہمایوں اختر نے ذرا زیادہ ان کی باتوں سے میں متفق ہوں، اور کراچی شہر جس قسم کا شہر ہے، اتنے بڑے شہروں میں چھوٹے موٹے مسائل اور امن امان کے مسائل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں ضیاء الحق کے بعد سے اس شہر میں چھوٹے موٹا امن امان کا مسئلہ بڑھ کر امن امان ایک بحران کی صورت شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ جو کہتے ہیں کہ سوات اور وزیرستان والی جو بات بتاتے ہیں، سوات میں سیاسی پارٹیاں دہشت گردی سے الگ ہو کر کھڑے ہوئے، دہشت گردی کرنے والوں سے بالکل لا تعلق ہو گئے، اس حوالے سے انہوں نے قربانیاں بھی دی، کئی لوگ اس حوالے سے قتل ہوئے کہ وہ دہشت گردوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ، یہاں کچھ نہ کچھ سیاسی پر میں ناراض نہ ہونا، میرا کوئی دوست بھی ناراض نہ ہو، زاہد خان بھی ناراض نہ ہو، میری پارٹی والے بھی ناراض نہ ہو۔ سچ بولنے میں کیا ناراضگی ہے؟ سچ اور حق کی بات تو کرنی ہے۔ مطلب میرا کام ہے، میرا اپنا طریقہ کار ہے، میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا۔ جیسے زاہد خان نے کہا سیاسی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ان سارے مسائل، یہ بحران، یہ امن امان کا مسئلہ سیاسی بھی ہے۔ ایک طرف غیر ملکی معاملات بھی مانتے ہیں ہم اس کو کہ کراچی کا ڈسٹرب ہونا پاکستان کا ڈسٹرب ہونا ہے، کراچی کا امن امان پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے، ایک طرف یہ بھی ہے۔ میں اس معاملے کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آخری خطرہ کراچی کو ہی بنایا جاتا ہے، کراچی کے امن امان کو بھی ماضی میں ہر جمہوریت کے لیے ایک مصیبت کا پیغام لانے والی صورتحال رہی۔ اس میں میں بہت ساری باتیں کر جاتا ہوں، میں نے باتیں کر بھی لی ہیں، لیکن میں اس کو سیاسی بھی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں اگر سیاست نہیں ہے تو پھر اس وقت تو کہتے ہیں سیاسی نہیں ہے، جب کوئی قتل ہو جاتا ہے، جب شہید کوئی ہو جاتا ہے تو کیوں سیاسی پارٹیاں وارث بن کر کھڑی ہو جاتی ہے؟ کیوں کہتی ہے کہ یہ ہمارے ہیں؟ دوسری پارٹی کہتی ہے یہ ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کہو نا کراچی کے بیٹے ہیں، کہو نا پاکستانی ہیں۔ جب قتل ہو جائے، جب شہید ہو جائے، جب مائیں بیٹیاں رونے لگی، تب آپ وارث بن جاتے ہو کہ ہمارے برادری کے ساتھ، ہماری کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جب حکومت ایسی کوئی بھی حکومت، شاید ہی کوئی بدنصیب حکومت ہوگی جو ان حالات میں اپنے دور میں خوش ہوتی ہوگی، کبھی بھی نہیں، کوئی بھی حکومت نہیں، ہم بھی نہیں، ہمارے دل بھی تڑپ رہے ہیں، اور میرا تعلق سندھ سے ہے، میں مزید زیادہ تڑپتا ہوں۔ میرے ہی صوبے کا، میرے ہی وطن کے شہر میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جس میں ہم اصل سب لوگ جو وطن والے لوگ ہیں وہ بے بس کھڑے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، سب خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے روکوں گی اور آپ پھر پورے وقت دوں گی آپ کو بولنے کا۔ آپ حکومت میں ہونے کے باوجود، چیف منسٹر آپ کے، ہوم منسٹرز آپ کے، صدر آپ کا، سر وزیر اعظم آپ کا، انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے انڈر آتی ہیں، آپ کی کون سی ایسی طاقت ہے جو کراچی کے لیے آپ بلا کر
ठीक नहीं करवा हाँ, सकते? आप मेरा- किसके हाथों ब्लैकमेल मेरा हो ख्याल रहे है- हैं? किसके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं और कब तक ब्लैकमेल होंगे? मेरा हाँ, ये बात ठीक है, बात ठीक है, मैं जवाब दूंगा। और कई बातें बस यही मैं कह सकता हूँ कि वाकई कौन है, आप भी कह रहे हो कौन है, वसीम अख्तर साहब आएंगे वो भी कहेंगे कौन है, और जाहिद खान भी बोलेंगे कौन है। हुमायूं अख्तर साहब को तो नहीं सारा जान, हालांकि मेरे दिल की बात यह है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने, सारे जहान के बच्चे बच्चे को पता है कराची में क्या सूरत हाल है, सारे लोग हैं। सुने ये तो बड़ी ज्यादती हमारी है, मजबूरी अगर है, आपको नहीं सुने सर, तो सही, आपकी मजबूरी सुने तो क्या सही। लाशों पर है? आप सुने तो सही, चांडिया साहब, लाशों पर आपकी मजबूरी है? अभी मेरी नहीं सुने मेरी, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रियासती एक्शन से ये मामला ठीक नहीं हो सकेंगे, कंट्रोल हो सकता है, ठीक नहीं होगा। ठीक ये सियासी मसला है, सियासत से होगा, बातचीत से होगा। बार बार हम सियासी पार्टियों को टेबल पे लाते, बातचीत करते, नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें तकलीफ भी है। एक तरफ रियासत भी एक्शन में है, ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन फिर उस एक्शन की वजह से जो हुकूमत को बर्दाश्त करना होता है वो भी आप देखें। लेकिन आप समझदार हैं, दुनिया को देखती हैं, ऐसे मसाइल कई मुल्कों में हुए हैं और प्रेशर में हुकूमतें काम करती हैं, लेकिन बिल आखिर नुकसान बर्दाश्त कर कर सियासी अमल से ही इस बहरान को कंट्रोल किया जा सकता है, जो हमने तनकीदें बर्दाश्त। आप तनकीद को छोड़ दें, बोले आपने इलेक्शन में जाना है। ये तनकीद नहीं है, नहीं मैं कह रही हूँ आपने बहुत तनकीद बर्दाश्त की है ना, आप हर एक का मलबा अपने पर ले रहे हैं। अगर मुझे ये बताएं, अगर आपकी पार्टी में आपकी पार्टी का झंडा इस्तेमाल करके लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। अगर मुत्तहिदा के लोग दहशतगर्दी करें, आप उनके खिलाफ एक्शन करें। अगर जाहिद खान मेरे साथ मौजूद है, जाहिद खान को से पूछ लें, अगर अपने बंदूक उठाए हुए वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो इनको कराची के मैंडेट का कोई हक नहीं है। आप एक्शन लेने का सोचे तो सही ना सर। मैं यही तो कह रही हूँ, मेरे ख्याल में मेरी बहन, मेरे ख्याल में जितना नुकसान दूसरी पार्टियों ने उठाया या नहीं उठाया है, पर जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जानी नुकसान उठाया है, उतना ही नुकसान उन्होंने सियासी भी उठाया है। आप जो कहते हैं कि परचम में अगर हमारे लोग हैं, तो जितने लोग परचम उठाने की वजह से कत्ल हुए कराची में वो भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर परचम की आड़ में किसने किया है तो वहां भी एक्शन हुकूमत ने लिया है, और उस एक्शन की वजह से हो सकता है कई बेगुनाह भी गए हों। लेकिन हमें जितनी तनकीद बर्दाश्त करनी, एक मिनट दीजिएगा सेनेटर जाहिद खान साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। जो बातें चांडियो साहब कर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं? आप लोग खामोश भी हैं और उसके बाद आप मैंडेट भी क्लेम करते हैं और आप अपने वर्कर्स की लाशें भी उठाते हैं, फिर उनके जनाजों में भी जाते हैं और फिर कहते हैं जी हमें नहीं पता किसने मारा है। ये खेल कब तक चलता रहेगा? ये हाइड एंड सीक जो बच्चे खेला करते थे बचपन में, जिसमें दो बातें है। तो हुमायूं साहब ने जो बात की, मैं उसका भी क्योंकि वो अच्छे ख्याल रखने वाला बंदा है जी। देखिए, जो मैंने स्वात की बात की, स्वात में भी यही सूरत हाल थी। चांडियो साहब ने भी कहा और ये कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज और लोग उससे अलग थलग हो गए थे जो दहशतगर्द थे, और ये हकीकत है कि अगर अलग थलग न होते तो शायद फिर भी कामयाबी न होती। आपको याद होगा कि परवीन मुशर्रफ दौर में भी ऑपरेशन स्वात में हुआ था, और लेकिन वो सिर्फ फौज थी, अकेली फौज थी, तो वो कामयाबी ना हासिल कर सके। क्योंकि सिविल गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है, ये जरूरी नहीं है ये फौज हमारी है, जब जरूरत सिविल गवर्नमेंट को पड़ती है तो वो अपनी जरूरत के लिए फौज को बुला लेती है। इसमें कोई मेरे ख्याल में अनहोनी बात नहीं है। जहां तक कराची का सूरत हाल है, चांडियो साहब से एक बात पे मेरे इख्तिलाफ है कि चांडियो साहब ये ठीक है, अगर हम कहे जी हम नहीं है, पीपल पार्टी नहीं है, MQM नहीं है, कोई तो कर रहे हैं ना, फिर तो ऐसे ही करना क्या होता है कि हम सब मिलकर, इन चीफ मिनिस्टर इनका है वो बैठे सब पॉलिटिकल पार्टीज को, एक नहीं जो इत्तेहाद में बैठे, ये नहीं जो इत्तेहाद में नहीं है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, जो सूबाई असेंबली में नहीं है, उन सबको, जो कराची के स्टेक होल्डर है उस सबको बुला के बैठे और इसका हल निकाले। हल ये है कि सब कह दे कि भाई जो भी दहशतगर्द है यहाँ, या जिस पार्टी से भी किसी ने अपना झंडा उठाया है, जिस पार्टी का, 100 दफा ये बात हो चुकी है जाहिद खान साहब। मेरे ख्याल से 50 प्रोग्राम तो मैं आपके साथ कर चुकी हूँ और 500 कोर कमेटीज में ये बात कर चुके हैं।
देखिए, कोर कमेटी तो इन दो पार्टियों के कोर कमेटी में तो हम है ही नहीं, लेकिन कोर कमेटी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एज ए होल सारे कराची की बात कर रहा हूँ, जिसमें सिविल सोसाइटी और सबको बिठाए और कहते कि जी इसके बगैर नहीं है कि हम एक्शन करें, और एक्शन तब होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी उस दहशतगर्द से अपने आप को आइसोलेट करे और उसके लिए प्रेशर न डाले। आपने बहुत अच्छी बात की कि क्यों आप ब्लैकमेल हो रही है, क्यों आप मुसालियत से काम ले रहे, चाहे एनपी आपको कर रहे, आप बता दे कौन को कि एनपी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, चाहे अगर आप एनपी से मुसालियत कर रहे तो कौन को बताए थे कि एनपी मुसालियत हम उसे कर रहे हैं, हमने तो कभी भी नहीं कहा। और अगर हमारा मजबूरी का नाम जरूरत है जाहिद खान साहब, अगले वजीर आजम की तारीख लगी हुई है, अगर ये नाम ले लेंगे तो बड़े वोटों से चले जाएंगे। मुझे यहाँ छोटा सा वक़्त लेना दे, मैं हुमायूं अख्तर खान साहब से ये पूछना चाहूंगी कि आखिर इस मसले का हल क्या है, बिकॉज रेवेन्यू इज फ्लाइंग अवे फ्रॉम दिस कंट्री, पीपल आर लीविंग, और जैसे कि फॉर्मर वजीर आजम ने कहा भी था, जाते हैं तो जाए ना, इनको किसने रोका? वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं अख्तर खान साहब, आपने मौला बख्श चांडिया साहब की गुफ्तगू सुनी, एंड ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, सीरियसली हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ये हमेशा जब बात करते हैं ना तो गोलमोल बात नहीं करते। उन्होंने कहा ये सियासी मसला है, क्यों लोग अपनी लाशें लेके खड़े हो जाते हैं, क्यों फौरन एक दूसरे पे इल्जामात लगाना शुरू हो जाते हैं, क्यों चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए कराची है, इट्स अ पाए, आई अंडरस्टैंड, हर एक को पाए का, केक का एक पीस चाहिए, अब इसकी इक्वल डिवीजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपका क्या सजेशन है? जी, मैं आपसे मुतफिक हूँ। मौला बख्श चांडिया साहब की ये पहली टर्म है सेनेट में, और कम से कम मैं तो इनसे बहुत मुतासर हूँ। मुझे लगता है कि इनकी पार्टी भी बहुत मुतासर है, जो उनको बड़ी तेज़ी से अल्लाह माशाल्लाह तरक्की दे रही है। माशाल्लाह, खरे आदमी हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, खरे आदमी हैं और खरी बात करते हैं, और दूसरों का एहतराम मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं, और हमारी सियासत में यही रवायत आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल जी। मैं चांडिया साहब से मुतफिक हूँ कि ये मामलात हम सियासतदान हैं, हमें मामलात सियासी तरीके से हल करने चाहिए, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि बस अब की बार पीपल पार्टी अब ख़त्म होगी। पीपल पार्टी एक पुरानी पार्टी है और इसकी जड़ें मौजूद हैं, और इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन मैं एक मशवरा ये दूंगा कि अब 4.5 साल के बाद तमाम सियासी पार्टी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं या पार्लियामेंट से बाहर, मिलकर अब हम एक इलेक्शन की तरफ बढ़ें। खुशाइन बात है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर में किसी ने उनकी मुखालफत नहीं की। खुशाइन बात है कि हम वोटर लिस्ट पे अब मुतफिक हैं कि भाई वो अब वोटर लिस्ट ठीक हैं, और इसी तरह मैं चाहूँगा कि तमाम सियासी पार्टियाँ मिलकर अगली इलेक्शन की तारीख आपस में तय करें, और केयर टेकर्स न्यूट्रल किस्म के जेन्युइन केयर टेकर्स लाएं, और हम अब एक इलेक्शन की तरफ बढ़ें, और जिसको भी हुकूमत मिले या कोई कोलिशन बने, वो मिलके अब इन मामलात को, चाहे वो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, बहुत हमारे मसाइल हैं, हमारे इक्तिसादी मसाइल हैं, हमारे बेरोजगारी के मसाइल, हमारी तकरीबकारी, हमारा कराची का मसला है, हमारी इंसर्जेंसी है, हमारा बिजली का मसला है, हमारा पानी का मसला है। ये मसले अब देखिए ये सारी पार्टियां, जायज़मीन, ये सारी पार्टियां, ये मुल्क इन सारी पार्टियों का है, और ये मुल्क अल्लाह करे सारी उम्र रहे और फले फूले, तभी ये पार्टियां इस मुल्क में सियासत करेंगी। इसलिए हम सबको मिलके आगे एक पेशकदमी करनी चाहिए, जो मैंने हल प्रपोज किया है। बहुत सी पार्टियां मुतफिक हैं कि इसी रास्ते पे हम चलें। ठीक है, आई एग्री विद यू। एक सेकंड के लिए अज्यूम कर देते हैं हमें वसीम अख्तर साहब ने ज्वाइन किया, मेंबर है नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन है, फॉर्मर होम मिनिस्टर सिंध भी रह चुके हैं। वसीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अच्छा हुमायूं, जस्ट बिफोर आई गो टू वसीम अख्तर साहब, लेट्स अज्यूम ये हम चलें, केयरटेकर सेटअप आ गया, इलेक्शन हो गए, सब मुत्तफिक हो गए, सब कुछ हो गया,
यही कोलिशन बन जाते हैं। चले आप दोनों कोलिशन बन जाते हैं, बीच में थोड़ा मसाला पीटीआई का भी डाल दें, थोड़ा जमात इस्लामी का डाल दें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डाल दें, सब पार्टीज डाल दें जिनका बड़ा बड़ा मैंडेट है, वो तो जीतना ही है ना, उन्होंने जीत जाएंगे आप।